My dear student, today we will learn past adjustment. How to give the adjustment entry. Past adjustment means in previous years any error committed relating to partnership agreement. Suppose interest on drawings, interest on capital, partners remuneration, profit sharing ratio. If any mistakes or any items not considered in previous year, it can be adjusted in current year. Let us understand the concept how to adjust. First, you see, my dear student, one simple example. The PL appropriation account का format है. You see, it is the extension of PL account. Net profit arrived from PL account. Suppose 100 rupees. Interest on capital. Suppose it's an example. A 7 rupees. B 3 rupees. Total interest is 10. B is getting salary for the year, suppose 5. A is getting commission, suppose 5. And interest on drawings charged on A and B, suppose 4 rupees on A, 6 rupees on B. Now total of right hand side is 110. So 110, the balance is 90. That is divisible profit. It is known as divisible profit. And suppose this partners divided equally, then 45. Now you see, it was supposed to be prepared. If one item is not recorded or not considered, suppose interest on capital was not considered, means this 10 rupees not deducted from this profit, what will happen? What would be the impact? This 10 rupees will increase the profit. That profit will become 100. That is, divisible profit will become 100. Means, if interest on capital was not recorded, not allowed, then what will happen? Profit will increase by rupees 10, and that profit will be distributed. This extra profit, nothing but 5 rupees will 5 rupees A will get, B will get 5 rupees. If the error is committed, now what happened? The impact of error, they got this 10 rupees as profit. These 10 rupees they got as profit equally. Instead of this, they got 5 as a profit. Now, my dear student, how to correct it if this 10 rupees was not recorded? So interest on capital, you see, interest on capital, A को कितना मिलना चाहिए था? 7 रुपीज. B को कितना? 3 रुपीज. अभी टोटल कितना है? 10 रुपीज. ये फार्म का है. ये क्रेडिट होता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का कैपिटल बढ़ाता है ना, इंक्रीज होता है. कैपिटल अकाउंट इंक्रीज्ड. एंड फार्म का क्या होता है? लॉस होता है, मीन्स माइनस होता है. डेबिट. इनका क्या होता है? ए का क्या होता है? प्लस. बी का भी प्लस होता है. कैपिटल बढ़ता है. तो ये अगर नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या? ये पैसा कहाँ चला गया? प्रॉफिट के. ये प्रॉफिट में रह गया ना. प्रॉफिट दैट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड और क्रेडिटेड एज प्रॉफिट. ये 10 रुपया कैसे चला गया? प्रॉफिट के रूप में चला गया. कैसे चला गया? कौन सा रेशियो में? 1:1 में 5 रुपया करके चला गया. दिस इज वर्किंग. इंटरेस्ट को मिलना चाहिए था ए को 7 रुपया. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो ए को मिलता 7 रुपया आउट ऑफ 10. अभी नहीं दिया, बल्कि ए को कितना मिला? 5. तो 2 रुपया कम मिला. ए को 2 रुपया कम मिला. मीन्स अभी ए को देना है, एस कैपिटल बढ़ाना है.
गलती से कितना मिला 5 रुपया, सही होता तो 7 रुपया मिलता, तो 2 रुपया अभी देने से एडजस्ट हो जाएगा. सो दैट्स 2 रुपीज विल बी क्रेडिटेड, his capital will be credited by rupees 10 sorry 2. B was supposed to get 3 rupees if interest on capital allowed. As it was not allowed, this 10 rupees distributed 5 equally, means B got more than the actual, that is 2 rupees he got more, so his capital account would be deducted, nothing but debited. So what is the journal entry? You see, nothing but adjustment entry. Very simple. Who is debited? B's capital account. B's capital or current account, or current account. If capital is fixed method, then current account. 2 rupees B's capital account debit to as capital account or current account debit 2 rupees. This is the journal entry or adjustment entry for this mistake. Very simple. My dear student, see one question of your textbook, page number 109, question number 36. Let us understand the first question. Where 3 partners are there, X, Y and Z. This is the question. For the year ended net profit कितना हुआ 60,000, and that same was distributed among them in 3:1:1. Later on or subsequently it was discovered that following items were not considered or not recorded. So what are these items? Interest on capital at the rate of 5%, interest on drawings amounted 700, 500, 300 of XYZ, and partner salary of X and Y were not recorded. Their capital, partners capital were fixed. X capital कितना है 1 lakh, Y is 80,000, 60,000. Now give the adjustment entry. This is the one problem. Let us understand first. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, ठीक है ना, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, क्रेडिट होता है. इंटरेस्ट ऑन ड्रिंक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है. पार्टनर सैलरी पार्टनर इंक्रीज द पार्टनर्स कैपिटल. लेट अस सी इम्पैक्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% कितना है तीनों का 5,000, एक्स का कितना है 5,000, वाई का कितना है 4,000, इसका 3,000. सो तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव क्रेडिटेड. सो नहीं हुआ, मतलब ये बिजनेस का क्या बिजनेस का एक्सपेंसेस कितना 12,000. ये कैपिटल बढ़ता है लेकिन बिजनेस का लॉस होता है, माइनस होता है. तो सैलरी भी देखो, यहाँ सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लेकिन ये मैं बाद में करूंगा. पहले देखो क्या मिल रहा है, पार्टनर सैलरी मिलता है ना, तो पहले हम पार्टनर सैलरी को लिख रहे हैं. पार्टनर सैलरी एक्स को कितना मिल रहा है 1,000 और वाई को कितना मिल रहा है 1,500. जेड को नहीं मिल रहा है, तो टोटल कितना 2,500 ये मिलता है. तो 6 एक्स को कितना मिलना चाहिए टोटल 6,000 इंक्लूडिंग सैलरी इंटरेस्ट. इसको कितना 5,500, इसको कितना 3,000. लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, पार्टनर देता है तो पार्टनर्स कैपिटल डिडक्ट होता है. कितना अमाउंट है क्वेश्चन में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 700x, 500y जेड का 300. सी ये माइनस करना है, तो ये पैसा देना है ना, नेट टोटल क्रेडिट और ये डेबिट. तो क्रेडिट ज्यादा है, एक्स को 6,000 देना है और उससे लेना कितना है 700. तो नेट इफेक्ट कितना है, नेट इफेक्ट
क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, कितना आएगा 6,000 से 700 में से 5,300, ये अभी नेट देने से हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हुआ नहीं है। इसका कितना है 5,000, इतना देने से हो जाएगा, इसका 2,700। अभी ये नेट देने से कितना होता है 10,000, 12,000, 13,000, am I right? 5,000, 10,000, 12,000 plus 13,000. So ये 13,000 was not actually recorded, net effect not considered. It was supposed this amount remain in the profit and distributed as profit. That amount distributed as profit. Now which ratio? In 3:1:1. Now this 13,000 to be divided by 5. What is the 13,000 divided by 5 means 10, 2,600. x को 3 टाइम्स मिल रहा है, कितना मिलेगा x को 310, तो 3 टाइम 3 6 18, मतलब 1 7,800। इसको कितना मिलेगा 2,600 वन टाइम 2,600। This is the working. This amount distributed as profit, na? That this 13,000 distributed among the partners as in this ratio. अगर सही होता, ये सब एंट्री होता तो A को इतना मिलता, B को इतना मिलता, सॉरी X को इतना मिलता, Y को इतना मिलता, Z को इतना मिलता। अब ये नहीं हुआ तो दैट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में चला गया। A को X को इतना मिला, Y को इतना मिला, Z को इतना मिला। तो डिफरेंस देखते हैं, सही अगर होता तो कितना मिलता, X को 5,300, गलती से चला गया तो 7,800, तो डिफरेंस ज्यादा चला गया ना, तो कितना ज्यादा चला गया 2,500 ज्यादा चला गया। अभी उसका कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे, कैपिटल मींस करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इनको कितना मिलना चाहिए 5,000, मिला कितना 2,600, मतलब 2,400 कम मिला है, कम मिला ना, मिलना चाहिए था 5,000 मिला, तो ये कम है, तो उनका करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल को बढ़ा देंगे। और इनको मिलना चाहिए था 2,700, मिला कितना 100 रुपये कम, तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे करंट अकाउंट। तो जनरल एंट्री वेरी सिंपल, जो डेबिट हुआ दैट इज द आंसर, सॉल्यूशन क्या है, डेबिट कौन है एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू वाइज current account 2,400 to Z's current account कितना है 100। So now adjusted, this is the answer, okay, got it। वर्किंग इज वेरी सिंपल, मिलना चाहिए जो प्लस होने वाला एक साथ लिख दिया, x को इतना मिलना चाहिए था, और x से लेना कितना था इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 700, तो नेट कितना हमको अभी देना है 5,300। तो ये सब नहीं दिया, मतलब x को नहीं मिला, तो ये प्रॉफिट में रह गया तीनों का, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे। इसका मतलब क्या है, गलती से गया लेकिन कितना अमाउंट गया, ज्यादा गया ना, x का कितना ज्यादा गया 2,500, तो 2,500 को अभी उसका कैपिटल से ले लेंगे, मतलब डेबिट कर देंगे, उसका कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी विल एडजस्ट फ्रॉम करंट अकाउंट बिकॉज दे आर मेंटेनिंग फिक्स्ड कैपिटल। इसी तरह y का भी क्या हुआ, मिलना चाहिए था 5,000, उसको मिला कितना कम, गलती से कम मिला, तो कितना कम मिला 2,400, तो अभी उसको देंगे, उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। जेड का कितना मिलना चाहिए था 2,700, मिला कितना 2,600, 100 रुपया
कम मिला है तो उसको देना है, उसका कैपिटल को बढ़ाना है 100 रुपया, वही जनरल पोस्ट। दिस इज द आंसर। My dear student, let's see another problem of your textbook, page number 95, where it is under do it yourself within the box. The last problem. See Leela, Meena, this is the last problem. Third problem of under do it yourself is the third problem. You see, Leela, Meena, Neha, partners है तीनों. They have omitted interest on capital at the rate of 9%, I think. Yes. 9% ना, यस 9% फॉर 3 years, 3 साल नहीं दिया, और उन लोग का कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। नेहा लीला का 80, इसका 60, नेहा का 1 लाख, और 3 साल का रेशियो अलग अलग है। लास्ट ईयर का है 2:1 मीन्स इक्वल, प्रीवियस बिफोर लास्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर 4:5:1, एंड 2004-5 का कितना है 1:2:2। So see how to adjust with the help of working. Interest on capital, ये क्रेडिट होना चाहिए था ना, मतलब कैपिटल में बढ़ना चाहिए था, प्लस होना चाहिए, नहीं हुआ। ठीक है, किसी कौन कौन है, लीला है, तो इसके बाद मीना है, उसके बाद नेहा है, तीनों का कितना 9%। उनका कैपिटल कितना है, लीला का कैपिटल है 80,000, तो 80,000 का इंटरेस्ट कितना होगा 9%, 7,200। लीला का कितना होगा 7,200। मीना का 9% है, 9% 60,000 के ऊपर 5,400 आई थिंक, यस 5,400। और नेहा का कितना कैपिटल 1 लाख, इसके ऊपर 9,000 कितना है 9%, दैट इज 9,000। ठीक है, तो ये 1 साल का है, 1 साल का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट कितना है, ये फार्म का प्रॉफिट में रह गया कितना 4/6। ठीक है, 9 + 14 + 7 21,600 मतलब प्रॉफिट के रूप में फार्म में रह गया। तो 1 साल का। इसी तरह 3 साल मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 साल उसको मिलना चाहिए था, 3 साल नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 21,600। इनका कितना नहीं मिला 3 साल में, 16,200। इनका 3 साल में कितना मिलना चाहिए था 27,000। ये मिलना चाहिए था तीनों साल मिलके। तो हर साल ये जो प्रॉफिट में चला गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हर साल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, द प्रॉफिट दैट अमाउंट क्रेडिटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया एज प्रॉफिट इन फॉलोइंग में। सो पहला साल कौन सा है, मतलब लास्ट ईयर कैसे हुआ 2006-7 में कौन सा रेशियो 1:1:1। 2005-6 में कितना रेशियो है 4:5:1। 2004-5 में कितना 1:2:2। इसे रेशियो में गया। तो देखते हैं पहला साल कितना है लास्ट ईयर, आउट ऑफ 21,600। एक साल में कितना है 21,600। ये 21,600 के अगर तीनों साल अलग अलग रेशियो में गया तो अलग अलग बैठाएंगे। ठीक है, तो 21,600 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिवाइडेड बाय 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200। ठीक है, am I right? यस 7,200 तीनों को मिला लास्ट ईयर एज ए प्रॉफिट। और उसके पहले साल कितना मिला
4:5 मीन्स टोटल 10 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 2160 इंटू 4, एक्स को कितना मिला 4 मिला, एट सिक्स 40 ये एक्स को मिला। वाई को कितना मिला 5 टाइम्स मिला, वाई को 5 टाइम्स मिला 10,800, वाई को कितना मिला 10,800। अभी इसको 1 टाइम मीन्स 2160, नेहा को कितना मिला 2160। ये सेकेंड ईयर लास्ट ईयर 2005-6 का है। अभी 2004-5 में कितना रेशियो में बांटा 1:2:2, टोटल कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। एक साल का प्रॉफिट कितना है 21,600, तो 5 से डिवाइड करने से कितना होगा 4,320, तो एक्स को कितना मिला 4,320 मिला। वाई को कितना मिला 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स मीन्स 8640, और इनको कितना मिला सेम मिला 8640। ये तीनों साल लीला को इतना मिला, मीना को इतना मिला प्रॉफिट के रूप में। अगर ये रेशियो में इंटरेस्ट कैपिटल देता तो इतना मिलता, तो ये तीनों साल टोटल कितना मिला लीला को, प्लस करो 6 ना 3 6 9 1 9 13 मिलना चाहिए था लीला को 20, मिला है 20,160, लेकिन मिलना चाहिए था 21,600, तो डिफरेंस कितना है 21, मिलना चाहिए था 21,600, मिला कितना 20,160, तो कम मिला है, कितना कम मिला है सी 21,600 माइनस 20,160 कितना कम मिला 1,440 से 1,440 कम मिला लीला को, तो आप दे देंगे मतलब क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मीना को देखो, मिलना चाहिए था कितना 16,200, मिला कितना तीनों साल में, ये प्लस कर दो कितना आ रहा है देखो 26,640, तो ज्यादा मिल गया। इनको मिलना चाहिए था 16,200, मिला कितना 26,640 प्रॉफिट के रूप में, तो अब इससे माइनस कर देंगे इनको, जीरो 10,440 ज्यादा मिल गया, मतलब उनको हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, उनका कैपिटल को घटा देंगे, घटाना मतलब डेबिट कर देना, ठीक है ना। बढ़ाना तो अमेरिकन रूल में क्या बोलता है, कैपिटल अकाउंट बढ़ाना मतलब क्रेडिट करना है, घटाना मतलब डेबिट करना है, इसका मतलब माइनस होगा ना कैपिटल अकाउंट, ये प्लस होगा। अभी देखो नेहा का देखो कितना मिलना चाहिए था 27,000, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अलाउ होता तो तीनों साल उनको मिलता 27,000, नहीं हुआ तो प्रॉफिट होके चला गया, तीनों साल कितना मिला मिला के 1 3 4 1 8 10 18,000 मिला, कितना 18,000, तो कम मिला है ना। सही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो 3,000, तो 9,000 उनको कम मिला, तो उनका कैपिटल हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और इनको ज्यादा मिल गया, इनको डेबिट कर देंगे। तो लेट अस गिव द जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री, कितना होगा देखो, यही सॉल्यूशन है, ठीक है। जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री इसको बोलता है एडजस्टमेंट एंट्री, और जर्नल प्रॉपर बोल सकते हो। डेबिट कौन हो रहा है मीनास
क्योंकि उन लोग का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इसीलिए हम करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना अमाउंट 10,440। और ये लीला का कब मिला है, इसका करंट अकाउंट लीला करंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना रुपये से 1,440। और 9,000 नेहा का, टू नेहास current account 9,000. That's all adjustment entry for this problem. I hope all of you have understood. My dear student, last problem, let us solve it. Page number 95, question number 2. Here you see I have written page number 95 where under do it yourself. उसमें question number 2 में देखो, Krishna, Sandeep and Karim are partners in the ratio of 3:2:1. Their fixed capital, कृष्णा का कितना है 1,20,000, संदीप का 90,000, इसका कितना है करीम का 60,000। ठीक है ना, ओके। अभी देखो फॉर द ईयर 2006-07 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिट, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ। कैसा क्रेडिट हुआ, मिला कितना 6%, किसके बदले में 5% के बदले में, मतलब ज्यादा मिल गया। इंस्टेड ऑफ 5% मिलना चाहिए था 5%, मिला कितना 6%। वेरी सिंपल, ये नेट कितना इफेक्ट है 1% ज्यादा मिल गया ना, 5% तो सही है, 6% दे दिया मतलब कि 1% ज्यादा दे दिया। तो अभी 1% का ही वर्किंग करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। देखते हैं कैसे वर्किंग करते हैं। Working, see, interest on capital at the rate of 1%, nothing but 6% minus 5% per annum. इंस्टीड ऑफ 5% 6% दे दिया तो 1% मोर क्रेडिटेड ना, 1% मोर क्रेडिटेड, ज्यादा हो गया, ज्यादा मिल गया 1%। ठीक है, कितना रुपये ज्यादा मिला, किसको किसको, कृष्णा को मिला, देन संदीप, देन करीम। कितना कितना मिला 1% ज्यादा उनका कैपिटल के ऊपर। तो यहाँ कैपिटल 1%, कैपिटल कृष्णा का कितना 1,20,000, 1% कितना होगा 1,200, यहाँ कितना है 9,900, 600। तो लेट 1,200, 900, 600 ये मिल गया, ज्यादा मिल गया इन लोग को। ठीक है, नहीं मिलना चाहिए था, ये शुड हैव, ये प्रॉफिट के रूप में जाना चाहिए, अभी उल्टा है। ये प्रॉफिट के रूप में कितना जाना चाहिए था, टोटल अमाउंट कितना है 1,200, ये 2,700, इतना रुपया प्रॉफिट के रूप में जाना चाहिए था। दैट अमाउंट शुड हैव क्रेडिटेड, दैट अमाउंट शुड हैव क्रेडिटेड। कैसे जाना चाहिए था, एज प्रॉफिट, प्रॉफिट के रूप में जाना चाहिए था। तो रेशियो कितना है इन लोग का 3:2:1 ऐसे जाना चाहिए था। तो कितना है टोटल 6, ये 2,700 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2,700 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 450, 450 इंटू 3, 450 इंटू 3 1,350। कृष्णा को मिलना चाहिए था 1,350 अगर प्रॉफिट हो गया करेक्टली मिलता। इनको कितना मिलना चाहिए, रेशियो 2 नथिंग बट 900। इनको कितना मिलना चाहिए 900। इनका रेशियो कितना है 1 नथिंग बट 450। इनको कितना मिलना चाहिए था 450। तो वर्किंग समझने की कोशिश करो, जस्ट कंसेप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 1% ज्यादा मिल गया उनका इंटरेस्ट, इतना अमाउंट उनको ज्यादा मिल गया, एक्चुअली नहीं मिलना चाहिए था। नहीं मिलना है तो क्या है, एक प्रॉफिट के रूप में मिलना चाहिए था। ये पैसा टोटल 2,700 प्रॉफिट के रूप में मिलना है।
तो प्रॉफिट अगर मिलता तो कैसे मिलता रेशियो 3:2:1। तो कृष्णा को कितना मिलता, सही अगर मिलता, ये मिलना चाहिए, समझो। पहले हमने ऊपर का मतलब मिलना चाहिए, अभी नीचे वाला मिलना चाहिए। मतलब कृष्णा को कैपिटल क्रेडिट होता, कितना होता, इतना, ठीक है। आप इसको डेबिट करना है, इसको क्या करना है, डेबिट करना है, घटाना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये ज्यादा है ना, ज्यादा मिलना चाहिए। कितना ज्यादा मिलना चाहिए था, 150। इनको अभी हम 150 दे देंगे तो मिल जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे 150 रुपीज तो हो जाएगा। इनको मिलना चाहिए 900, गलती से ज्यादा तब भी 900 मिल गया, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इनको मिलना चाहिए था 450, इनको कितना मिला 600, मतलब एक्स्ट्रा मिल गया। कितना मिला एक्स्ट्रा, 150, तो उनका कैपिटल हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो देयर कैपिटल फिक्स्ड बोल दिया ना क्वेश्चन में, तो हम लोग करंट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सी एडजस्टमेंट एंट्री, जर्नल प्रॉपर में करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, कौन डेबिट हो रहा है, कृष्णा, सॉरी करीम करंट अकाउंट डेबिट बाय ₹150 टू कृष्णास करंट अकाउंट। इनका कैपिटल को मिलना है ना, तो करंट अकाउंट बढ़ा देंगे 150, फिनिश। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री for 3 marks. Try to understand. Once again I am telling, instead of 5% 6% given means 1% ज्यादा दे दिया, तो ज्यादा दे दिया तो प्रॉफिट ज्यादा घट गया, मतलब अभी उसका कैपिटल से घटाना है, ठीक है ना। ये घटाना है कैपिटल से, और ये एक्चुअली देना है ये, ठीक है। तो ये प्रॉफिट में रहता, अगर प्रॉफिट में रहता तो कैसे मिलता, ऐसा रेशियो में मिलता 3:2:1 में। कृष्णा को इतना मिलता, ज्यादा चला गया एज ए इंटरेस्ट, गलती से 1200 मिला, तो अभी कितना देने से एडजस्ट होगा 150, कृष्णा को देने से एडजस्टमेंट हो जाएगा। इनको गलती से 900 मिला, सही होता तब भी 900, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इनका क्या है, करीम का गलती से 600 मिल गया, ज्यादा मिल गया, प्रॉफिट होकर मिलता तो कम मिलता ना 150, तो अभी उनका कैपिटल को डेबिट वाला घटा देंगे। आई होप my dear student, you have understood, and if any doubt, please feel free to contact me. My phone number is 943507945. With this word, thank you very much. Have a nice day.